between the cities of the future and the villages of the past, there's a town. A town which is something unique. A town which is just like the rest of the others. और कहते हैं ना कि हर शहर की अपनी एक कहानी होती है और हर शहर में लाखों कहानियाँ छिपी होती हैं। ये कहानी मेरे शहर की है। A town which is called Purnia. अगर आप मैप खोलकर देखें तो पूर्णिया शहर आपको बिहार स्टेट में कोसी और सौरा नदी के बीच मिलेगी, लेकिन हमारी कहानी यहाँ शुरू नहीं होती। Our story begins from the mythology. Audio started. 3, 2, 1 and action. Our story begins from mythology. In Ramayana, this area is said to be under Vidya kingdom, which is ruled by Janak, aka home of Sita. And in Mahabharata, this area was a part of Angdesh, which is given to Karna by Duryodhan. Purnia की story सिर्फ mythology तक ही सीमित नहीं. It has a slight connection with Mughal rule too. During the Mughal rule, Purnia was an outlying military province और इसकी revenue mostly उस वक्त इसके borders को protect करने के लिए खर्च होते थे against the tribes from the east and the north. And after the capture of Kolkata in 1757, Purnia's local governor raised a rebellion against Sirajuddaulah. And in 1765, Purnia district British possession के अंदर आ गया था और ये building Britishers द्वारा ही बनाया गया था. And lastly, on 14 Feb 1770, the district of Purnia in modern history was formed by the East India Company. And that day is celebrated as the Foundation Day in Purnia. इसके बाद कौन सा वाला पार्ट? पुराना वाला? वो तो तुम्हारा है ना? One can express what's going on and what you're concerned with and what your issues are in music. Purnia also comes from the word Purayan, which means lotus. The city has faced deadly earthquake, famine, and the wrath of Kosi River in the past, but stands strong even after the rampant corruption and lazy administration. And surprisingly, even after all the lazy and poor management of the public spaces, the economy of the city is still booming. It's this one time when I need your help. Let's get this way, 'cause sometimes इस वक्त कमर्शियल एरियाज एक्सपैंड कर रही हैं, फिर चाहे वो लोकल बिजनेसमैन हो या बड़े ब्रांड्स, दोनों ही शहर में इन्वेस्ट कर रही है. So this may be the right time for you to invest in the city. और बात जब पूर्णिया की इकोनॉमी की हो रही है, then we have 3 markets in the picture, which you can consider as the pillars of economy of Purnia. Number 1 is Line Bazaar. Line Bazaar is a medical hub of Purnia. यहाँ के डॉक्टर्स और मेडिकल फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. We have a huge number of doctors in Line Bazaar, and because of this, पूर्णिया के आसपास जितने भी छोटे शहर हैं, वहाँ के सारे लोग पूर्णिया में ही मेडिकल ट्रीटमेंट प्रेफर करते हैं. कितना हो गया भैया? Then we have the Gulab Bagh. The market of Gulab Bagh is one of the oldest markets of Bihar. और ये मार्केट इंडिपेंडेंस से पहले से ही जानी जाती है अपने बल्क ट्रेडिंग के लिए. And lastly, we have the Bhatta Bazaar. टाउन की सबसे बिजी रहने वाली मार्केट because of the cluster of everything in one place. In the dance of the vehicles, there is barely space to walk in Bhatta Bazaar during evenings. It looks messy and ugly, but you take the vehicles out of the picture and it becomes a haven for shopping. And that's something the administration should think about. लेकिन ये सारी बातें तो हो गई इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में. But what about the life of the youth of the city? During the pandemic, most of the youth who used to stay outside were forced to come back into the hometown. The hip and free birds who used to fly in the bars of Cafe, Delhi and Mumbai were caged in slow-paced conservative life. जब पैंडेमिक के बाद मैं पूर्णिया आई तो सबसे पहले तो मैं खुश थी क्योंकि मैं बहुत दिन के बाद घर आ रही थी. पहले आए तो सब चीज़ ऐसे रुका हुआ टाइप का, ठीक है,
उसके बाद स्टार्टिंग में तो सबको काफ़ी डरा हुआ था, तो प्रिकॉशन के साथ भी बाहर जाने नहीं दिया जा रहा था। मेरा वहाँ से आने पे कुछ एक्सपीरियंस ज़्यादा बेटर नहीं था, क्योंकि वहाँ की लाइफ यहाँ के कंपैरिजन में क्वाइट बेटर थी मेरी। समझ लो कि रांची है कि हम माउंटेन ट्रैकिंग पे गए हैं, पूरा एक अच्छा लाइफ बीत रहा है, ट्रैक कर रहे हैं, पूरा दोस्त है कि मन लग रहा है कि हाँ जाना। पूर्णिया इज़ लाइक हम लोग वापस आसमान से धरती पे आ गए हैं। मतलब तो सबसे पहले तो काफ़ी ख़राब एक्सपीरियंस रहा जब कॉलेज से नोटिस आया कि अब जून तक बंद है कॉलेज। आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है। खैर जो भी, उसके बाद लगा ठीक है जून तक ही तो है, समय कट जाएगा। उसके बाद जब फिर थोड़ा नॉर्मल हो गया सब चीज़, तो जब अब सोचे कि अब तो घर में बोर हो रहे हैं, चलो बाहर जाते हैं। तो बाहर गए तो देखे कि कुछ खास है नहीं यहाँ पे करने के लिए। वहाँ पे रांची में जैसे था कि अपना नॉर्मल लाइफ था, कॉलेज के बाद ट्यूशन के बाद कोई वर्कआउट हो गया, या फिर दोस्तों के साथ कहीं पब चले गए, मोचा कैफ़े चले गए, तो अच्छा लाइफ था, एक एक्सप्लोसिवनेस था। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ था नहीं। बट धीरे धीरे लॉकडाउन जैसे नॉर्मल हो रहा था, तो धीरे धीरे कुछ नए कैफ़ेज़ भी खुले। लाइक सेवरल कैफेज एंड ऑल खुले हैं। कैफ़े है जैसे कि पूर्णिया में 7th हेवन हो गया, या फिर आप सेंटर पॉइंट चले जाइए। हम लोग सारे फ्रेंड्स गैदर करके वहाँ कुछ पार्टी सॉर्ट ऑफ कर सकते हैं। बहुत सारे कैफेज एंड ऑल खुल गए हैं, बट हम वहाँ नहीं जा पाते। बॉयज़ जाते हैं वहाँ, बॉयज़ कैन मूव फ्रीली, बट गर्ल्स को 1000 परमिशंस लेने पड़ते हैं। वहाँ पे फ्रीडम था, मीन्स कि आप कभी भी बाहर जा सकते हो। यहाँ पे लड़का जैसा फ्रीडम नहीं कि लड़का को जब भी मन किया वो बाहर निकल गया, लेकिन लड़की लोग क्या है कि कोई काम रहेगा तो निकलेगी, या तो कहीं जाना होगा पर्टिकुलरली तब किसी और के साथ निकलेगी। गर्ल्स आर सेंट टू फार सिटीज़ टू फॉर देयर एजुकेशंस, बट यहाँ फ्रेंड्स के यहाँ अगर नाइट स्टे करने के लिए बोलो नहीं, बहुत प्रॉब्लम है। पहले के कंपैरिजन में अभी थोड़ा ब्रॉड माइंडेड हुआ है पेरेंट्स, लेकिन पहले ज़्यादा कंजर्वेटिव था। पहले निकलने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे, बहुत ज़्यादा रीज़न बताना पड़ता था, लेकिन अब उतना रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, पेरेंट्स अलाउ कर देते हैं। इस मामले में है कुछ हद तक, पेरेंट्स कहते हैं बॉयज़ गर्ल्स इक्वल हैं सब, बट ऐसा टाइम लगेगा, ऐसा सच में इक्वल प्रूव करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। यस, इट इज़ अ पेट्रियार्कल सोसाइटी जहाँ लड़कियाँ लड़कों जैसे सेम फ्रीडम एंजॉय नहीं करती। द रिस्ट्रिक्शन ऑन वुमेन हैज अनफॉर्चुनेटली बिकम अ ट्रेडिशन एंड पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल, एंड द ओनली वे ऑफ गेटिंग रिड ऑफ एनी बैड ट्रेडिशन इज मेकिंग न्यू ट्रेडिशन, adopting a more liberal and modern lifestyle. But you know what? Patriarchy is not the case of every household. लोग उस सोच को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, और उन्हें बढ़ना भी होगा, क्योंकि एक शहर कभी भी अपने बिल्डिंग या रोड से नहीं जाना जाता, वो जाना जाता है अपने लोगों से। और पूर्णिया हर उस शहर की तरह है जहाँ लोग छोटे झोपड़ियों में भी रहते हैं और बड़े बंगलोज में भी, जहाँ कपड़े फुटपाथ पे भी बिकते हैं और बड़े ब्रांड्स के आउटलेट पे भी। यहाँ बच्चे सरकारी स्कूल में भी पढ़ते हैं और लाखों खर्च करके भी। ये शहर भी इंडिया के छोटे शहरों की तरह है, जो इस वक्त बड़ा भी हो रहा है और अपने बड़ों से सीख भी रहा है। एंड दैट इज वाई दिस इज अ टाउन विच इज समथिंग यूनिक, अ टाउन विच इज कॉल्ड Purnia.